Hello students, welcome to all of you in the class of physics. In the last lecture, we have studied about the resistance, resistivity and the various factors affecting the resistance. In this lecture, we are going to discuss about the combination of the resistances. Resistors basically दो तरीके नाल कंबाइन कर सकते हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो फर्स्टली जो ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन तो रजिस्टर्स इन सीरीज। तो फर्स्टली ये समझना है भी ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਰजिस्टर्स ਨੇ ਉਹ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। सपोज करो मेरे को आई हैव 3 रजिस्टर्स, दिस इज R1, this is R2 and this is R3, 3 रजिस्टर्स ने and they are connected end to end। देखो ध्यान नाल देखो, ਜਦੋਂ ਦੋ रजिस्टर्स ਇੱਕ एंड ਤੋਂ कनेक्टेड ਹੋਣ ਦੂਸਰੇ एंड ਤੋਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कनेक्टेड ना ਹੋਣ तो सीरीज ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ how you will identify the combination is in series or in parallel। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰजिस्टर्स ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰजिस्टर्स ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ B, ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ A ਤੇ B, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰजिस्टर्स ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ। if between two points A and B there is only one path, सिर्फ एक ही पाथ है जान ਲਈ, कोई दूसरा पाथ डिवाइड नहीं हो रहा, A तो B तक जान ਲਈ कोई दूसरा पाथ नहीं हैगा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਰजिस्टर्स ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। if in going from A to B there is only a single path then the resistors are said to be in series। ਤਾਂ series ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰजिस्टर्स ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ A ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ B ਤੇ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ let us suppose B is the potential difference applied by the battery। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ A ਐਂਡ ਤੇ B ਐਂਡ, A ਐਂਡ ਤੇ B ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਏਗਾ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੇ ਪਾਥ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਏਗਾ B। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟ R1 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ R2 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ R3 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਫਸਟ ਰजिस्टेंस है इसमें कितनी वोल्टेज मिली है पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड दे क्रॉस में सपोज कर लिया V2 ते थर्ड दे क्रॉस में सपोज कर लिया V3। इन्नी गल क्लियर होगी जी। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा V इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इथों पर यह भी गल सीख के याद रखने सीरीज दे विच जिहड़ी वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा की होएगा डिवाइड होएगा, याद रखना है। अच्छा दूसरी गल आपां करदे हां करंट दी। करंट पॉजिटिव तो नेगेटिव फ्लो करेगा लाइक दिस। सपोज I इज द करंट इन द सर्किट। हुण जो सीरीज दे विच करंट है सेम रहेगा तो करंट की है फ्लो ऑफ चार्जेस। इथों मान लो सपोज करो चार्जेस जा रहे ने है ना। हुण जे इत्थे 10 चार्जेस ने, 10 चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे ने तो R1 चो किन्ने लंघणगे 10, R2 चो भी किन्ने लंघणगे 10, R3 चो भी किन्ने लंघणगे 10, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, उत्थे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं हैगा जिथे वो डिवाइड हो जान। जो चार्ज इथों फ्लो कर रहा है वही सेम चार्ज ऑल द रेजिस्टेंसेस जो है सब चो सेम चार्ज फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। करंट किसी भी पासे होर कोई वायर या रास्ता पाथ नहीं है जिधर करंट की हो जाए डिवाइड हो जाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल, करंट विल बी सेम। तो सीरीज याद रखना है जो करंट होएगा वो हमेशा सीरीज की होएगा सेम। दो पॉइंट्स तुसी याद रखने ने, सीरीज दे विच पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होएगा ते करंट की होएगा सेम होएगा। क्लियर।
तो ये जो अपने को सर्किट है ये जेकर मैं फर्स्ट रजिस्टेंस है जो मेरी ये मैं इसलिए इक्वेशन लिखा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ तो V1 इज इक्वल टू करंट कितना इस तो जा रहा है I ते रजिस्टेंस कितनी है R1। तो इक्वेशन आ गई मेरे को फर्स्ट रजिस्टर की इक्वेशन है V1 इज इक्वल टू I R1। सिमिलरली फॉर सेकंड रजिस्टर potential difference is V2, current is same, I here, resistance is R2. So this is equation number 3, V2 is equal to IR2. Similarly for the third resistor, V3 is equal to IR3. Clear? तो सबली इक्वेशंस हो गई। हुण आपां की करदे आ कि आपां बेसिकली फाइंड आउट की करना है सारे सर्किट दी टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की होएगी ये आप देखना है। तो सारे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैं सपोज कर ली दैट इज RS। मैं सपोज कर लेना RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। ठीक है जी। R मतलब रेजिस्टेंस पैर दे विच मैं सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं S का मतलब फॉर सीरीज। तो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये सारे दी सर्किट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है सपोज करो सारी RS है। तो मैं पूरे सर्किट दी जेकर इक्वेशन लिखा इक्वेशन फॉर द होल सर्किट की होएगी वोल्टेज कितनी लगाई है V सारे सर्किट जो करंट कितना फ्लो कर रहा है I ते होल सर्किट दी रेजिस्टेंस की है RS। तो V is equal to IRS for the whole circuit. This is equation number 5. Clear? Now what we have to do, just put these values here in the equation number 1. जो values आप equation number 1 दे विच put करांगे, let us see what will happen. V that is IRS, V1 IR1 plus IR2 plus IR3. So I will be common this side R1 plus R2 plus R3. So I is cancelled. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this will be the total resistance, equivalent resistance of the circuit where resistors are connected in series. The total resistance simply sum आएगा जी। जिन्नी भी इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगे ने वो सारे रजिस्टेंसेस का सम कर दियो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर्किट ਦੀ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। क्लियर होया? जे ओनली दो रजिस्टर्स होंदे फिर ਆਪਾਂ R1 plus R2 कर देंगे। जेकर 4 होए कोई R4 भी है तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 एंड वी कैन एक्सटेंड इट अप टू n रजिस्टेंसेस जिन्नियां भी हैगियां साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज दी। क्लियर होई गल? अच्छा रजिस्टर्स नू सीरीज च आपां लगा क्यों रहे हैं, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देखो सीरीज दे विच लगाने नाल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो आपां सीरीज क्यों लगा रहे हैं हमेशा याद रखना है, इहदे नाल रेजिस्टेंस की होएगी इंक्रीज होएगी। सपोज करो मेरे को 2 ओम के रजिस्टर्स ने 2 ओम के रजिस्टर्स ने। ठीक है जी। मैनू किसी सर्किट दे विच 6 ओम रेजिस्टेंस चाहिए है, मैं की करूंगा मैं 2 ओम तिन्ने काच लगा दूंगा सीरीज च लगा दूंगा। 3 रजिस्टर्स 2 ओम का मेरे को कितना बन जाएगा 2 + 2 6 ओम रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो सीरीज दे विच आपां रजिस्टर यूज करते हैं टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। एक क्लियर आ गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये लिए आपां जो सर्किट डायग्राम है वो दोबारा तो ड्रॉ करांगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसनू कहते हैं आपां इसनू समझण दी कोशिश करांगे। देखो मान लो मेरे को 2 पॉइंट्स ने A एंड B, पहला दी तरह आपां 2 पॉइंट्स ले ले A ते B। इहदे विच मैं कुछ रजिस्टर्स लगा रहे हैं। ठीक है जी। दिस इज रजिस्टर सपोज करो R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2 and this is a resistor R3. Clear? I have 3 resistors connected between 2 points A and B. ਆਪਾਂ देखना है सीरीज च कि पैरेलल च। तो देखो पहली गल पैरेलल च की ध्यान रखना है, पैरेलल दे विच जो रजिस्टर्स होणगे वो दोवें एंड्स तो कनेक्टेड होणगे। ਆਪਾਂ सीरीज च देखिया सी they will be connected at one end not connected at the other end। पर पैरेलल च मैं की देख रहे ये दोवें रजिस्टर जेकर मैं देखा देखो इन्हां दे इस साइड वाले एंड्स भी कनेक्टेड ने ते इस साइड वाले एंड्स भी कनेक्टेड ने।
इन्हों देखो R1 एंड R3 तीनों रजिस्टर्स देखो ए वाले एंड्स भी कनेक्टेड ने ए वाले एंड्स भी कनेक्टेड ने इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम बोथ द एंड्स क्लियर तो किस च होणगे पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच होणगे। दूसरी गल ये भी देख सकते हो जिवें ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते जाना है तो देयर आर मैनी पाथ्स नॉट अ सिंगल पाथ एवरी रेजिस्टेंस हैव इट्स ओन पाथ हर रेजिस्टेंस दा अपना ओन पाथ है क्लियर तो इसनूं आपां की कहांगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहांगे। Resistors between 2 points are said to be connected in parallel if they are connected from both the ends and if in going from A to B there are many paths not a single path। हुण आपां इसनूं भी की करदे हां किसी बैटरी नाल कनेक्ट कर लैंदे हां कोई बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है तो पॉजिटिव एंड आपां कनेक्ट करता A पॉइंट ते नैगेटिव एंड आपां कनेक्ट करता B पॉइंट ते तो पोटेंशियल डिफरेंस तुसीं पढ़िया तो इस बैटरी ने A पॉइंट ते B पॉइंट दे विच कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता V। हुण ये पढ़ चुके हैं आपां भी दो पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा की रहिंदा है कांस्टेंट रहिंदा है व्हाटएवर बी दा पाथ ठीक है जी। तो हुण A ते B दे विच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जेकर मैं देखा इस पाथ चो देखा फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा V होएगा तो मतलब इहदे क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा B। जे मैं A तो B ते इस पाथ चो जावां फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V तो R1 दे क्रॉस भी पोटेंशियल कितना आ गया V आ गया। जे मैं R3 दे क्रॉस देखांगे पर फिर भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा V आ जाएगा। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट गल की सीख रहे हैं पैरेलल दे विच जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा की रहेगा कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा इन ऑल द रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम जो आप अप्लाई किया है क्लियर। दूसरी गल आप करिए करंट दी हुण इत्थों करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव तो नेगेटिव वाल दिस इज करंट आई हुण उत्थों चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सपोज करो 10 चार्ज पार्टिकल्स ने जब इस पॉइंट ते पहुंचे व्हेन दे रीच एट दिस पॉइंट देन देयर आर 3 पाथ्स 3 डिफरेंट पाथ्स तो की होएगा कुछ इस तरफ मूव करनगे कुछ इस तरफ मूव करनगे और डिवाइड हो जाएंगे। सपोज वी आर 10 पर्सन्स ओके पर्सन्स आर लाइक चार्ज पार्टिकल लेट अस सपोज वी आर गोइंग ऑन अ रोड तो देख चौक आ गया चौक तो बाद 3 रोड्स निकल रही हैं तो की होएगा पर जे 10 पर्सन दा पर डिवाइड हो सकता है कुछ 3-4 एक पासे चले जान 2 एक पासे चले जान इस तरह डिवाइड हो सकते हैं ठीक है। इस तरह करंट है जो करंट इस नोड पे पहुंचता है तो डिवाइड हो जाता है। आप सपोज करेंगे इस तरफ तो करंट गया लेट अस सपोज I1 जो इस तरफ तो करंट गया दैट इज I2 जो इस तरफ तो करंट गया I3 ठीक है जी। इत्थे तीनों करंट्स आके एड अप हो जाएंगे एड अप होके फिर की बन जाएगा I ही बन जाएगा। इन्नी गल क्लियर हुई तो मैं इत्थे ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ चीज सिख भी ਜਿਹੜਾ करंट है पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ करंट की होएगा डिवाइड होएगा तो आप लिख सकते हैं जो I है I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई ठीक है जी। हुण आपां अलग अलग जो रजिस्टर्स ने सारियां लई इक्वेशंस लिखांगे तो जिहड़ा फर्स्ट रजिस्टर है इहदे लई जे मैं गल करां पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू I1 R1 तो इत्थों I1 आपां फाइंड आउट करदे हां I1 कितना आ गया अपने कोल B बटे R1 इक्वेशन नंबर 2। सेकंड रजिस्टर आ जाओ पोटेंशियल इहदा भी V है करंट I2 रेजिस्टेंस R2 तो अपने को I2 का वैल्यू कितना आ गया V बाय R2 क्लियर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली I3 मेरे को कितना आ जाएगा B बाय R3 इक्वेशन नंबर 4 ओके। हुण आपां पूरे दे पूरा जो सर्किट है अपने को इहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपां फाइंड आउट करनी है वो आपां देखनी है कि कितनी होएगी। आपां एक बार सपोज कर लेने RP R मतलब रेजिस्टेंस P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लई इस सबस्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। RP की चीज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट तो सारे सर्किट दी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ओवरऑल होएगी वो सपोज कर ली RP है तो ओवरऑल सर्किट दी इक्वेशन लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है V करंट कितना फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट तो जी मैं सपोज कर ला यदि कोई रेजिस्टेंस है RP तो कितना करंट फ्लो करेगा I तो रेजिस्टेंस की है आप सपोज किया RP तो इथों RP जे सॉरी इथों आप जेकर I फाइंड आउट करिए I अपने को की आएगा V अपॉन RP दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
हुण आपां की करना है, सारियां वैल्यूज अपने कोल आ गईयां I1 I2 I3 I, ये वैल्यूज आपां इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट करनियां ने। लेट अस सी I दी वैल्यू V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 V अपॉन R1 I2 V upon R2 plus I3 V upon R3. So V upon RP is equal to, here V is common, so it is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this V is cancelled out, so 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Clear? तो आप की देख रहे हैं, what we observed here, जो पैरेलल कंबीनेशन है, पैरेलल कंबीनेशन दे विच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपां कैलकुलेट करना है, तो उहदे विच आपां जो सम कर रहे हैं रेसिप्रोकल्स दा सम कर रहे हैं। सीरीज दे विच डायरेक्ट सम होया सी, बट इस दे विच किवें सम हो रहा है, रेसिप्रोकल दा सम हो रहा है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंबीनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। गल समझ आई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R1 R2 दो ही ਹੁੰਦੇ, ठीक है जी, तो अपने को 1 by RP की हो जाना सी 1 by R1 plus 1 by R2, इस तरह रह जाना सी। अच्छा, इनू कई बार शॉर्ट फॉर्म तुसीं याद रखने लिए इस तरह भी लिख सकते हो, जेकर इहदा एलसीएम लईए ना आपां की बनेगा, इट विल बी R2 plus R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। क्लीयर? तो RP मेरे को कितना आ गया, रेसिप्रोकल करांगे, इट विल बी R1 R2 अपॉन R1 plus R2। ये फॉर्मूला तुसी याद कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू रजिस्टर्स। थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, अदरवाइज ये तुसी अप्लाई कर ही सकते हो, बेसिक फॉर्मूला है, बट ਇਹਦਾ एलसीएम ऑलरेडी ਆਪਾਂ लेके वाला फॉर्मूला बना लिया, तो RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 plus R2। थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ਆਪਾਂ। सपोज ਆਪਾਂ एक एग्जांपल लेने हैं, लेट अस सपोज आई हैव टू रजिस्टर्स R1 2 ohm R2 3 ohm। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ पैरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक मेथड ਇੱਥੇ पुट करो 1/2 + 1/3 एलसीएम लगा दो, ਉੱਥੋਂ आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। पर दूसरा चीज की है, सीधा ਇੱਥੇ वैल्यू पुट करो, तो 2 × 3 क्लियर अपॉन 2 + 3, दैट मींस 6/5। तो माइंड च भी हो सकता है, दो रेजिस्टेंस ने पहला ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे सम करना है, तो 2 × 3 6 बाय सम कितना आ जाएगा 5, तो 6/5 इज द आंसर, 6/5 ohm। Okay, it will just simplify your calculation. If you have 3 registers, then तो करना ही पड़ेगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, you will solve that. Clear? अच्छा, एक चीज होर तुसी याद रखो, if registers दो ही ने, तो दोनों जो registers ने ना वो सेम ने, सपोज करो जो दो registers पैरेलल लगाए ना, दी वैल्यू सेम है R, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस तुसी RP फाइंड आउट करोगे, वो सिंपली सीधा की आ जाएगा R/2 हो जाएगा। इत्थों ही सॉल्व किया, इत्थे पुट करो, जेकर तुसी सॉल्व करो तो R/2 आ जाएगा वो, ठीक है। तो तुहानू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पएगी। सपोज करो यू हैव टू रेजिस्टेंसेस 5 ohm 5 ohm, दो रेजिस्टेंस लगे ने, ठीक है। तो सीधा आंसर तुहाडे कोल इहदा आपां पैरेलल कंबीनेशन फाइंड आउट करना है, तो सीधा आंसर की है तुहाडे कोल 5/2 कर दो, 2.5 आंसर आएगा, 2.5। एक होर देखो, मान लो मैं एक दो फॉर्मूला मैं तुहानू होर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दसने चाहांगा। मान लो अपने कोल जो रजिस्टर्स ने सीरीज दे विच लगे ने, दिस इज रजिस्टर R1, दिस इज रजिस्टर R2। क्लीयर? इत्थे आपां कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V, तो सर्किट च की है, कोई करंट फ्लो करेगा I, करंट की रहेगा सेम, यू नो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इहदे क्रॉस की आ गया, सपोज करो V1, पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं डिवाइड होएगा V2, ठीक है। हुण जेकर आप देखना भी देखो करंट तो इहदा I है, इहदा भी I है, क्लीयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्ना आ रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस मैं जिन्ना लगाया जो इत्थे कितना आएगा ते इत्थे कितना आएगा, इहदे लई तुसीं फार्मूला याद कर सकते हो। V1 इहदा पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कितना, पहली गल याद करो, जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है IR, दा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जिन्नी रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी उहदे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होएगा, जे रेजिस्टेंस स्मॉल है पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होएगा। क्लीयर? तो इस करके हुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ध्यान नाल देखो, जिहड़ी रेजिस्टेंस दा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो रेजिस्टेंस लिखो, डिवाइडेड बाय दोवां दा सम,
इनटू जो वोल्टेज लगाई गई है इनपुट, दिस इज द फॉर्मूला। तो को सीधा V1 आ जाएगा। V2 के मैं कैलकुलेट करना है, देखो क्लियर, यही रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ इनटू इनपुट जो वोल्टेज लगाई गई है। तो बड़ा सिंपल मैथड है, इन्हां थोड़ी कैलकुलेशंस बहुत ईजी होणगियां, टाइम बचेगा। तुसी सिंपली V1 ते V2 दोवां दी जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना है जिस रजिस्टर दी वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो वो वाली रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दोवां दा सम इनटू इनपुट वोल्टेज। क्लियर होगी गल। हुण जेकर मान लो पैरेलल दे विच ने दो रजिस्टर्स, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी, इस नाल भी आपां कोई बैटरी लगाती, दिस दा पोटेंशियल डिफरेंस है V। पैरेलल च पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा, इहदा भी V इसदा भी V। करंट विल बी डिवाइडेड, सो हियर I, हियर सपोज I1, हियर I2, फाइनल फिर कितना हो जाएगा I हो जाएगा। सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम इन द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज अप्लाइड, सो R2 कितनी हो, R2 दी कितनी होएगी V ते R1 दी भी कितनी होएगी V, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट करंट डिवाइड होएगा तो करंट I1 कितना होएगा, ਆਪਾਂ करंट देखना है दोवां दा। तो देखो फॉर्मूला अपन V इज इक्वल टू IR है, जो I की हो गया V बटे R हो गया। तो फॉर्मूला की कह रहा है, जेड़ा करंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मतलब जिहदी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उत्थे करंट घट होएगा, जे रेजिस्टेंस स्मॉल होएगी तो करंट की होएगा ज्यादा होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो मैं इहदा करंट कैलकुलेट करना है, R1 का करंट कैलकुलेट करना है I1, तो रेजिस्टेंस तुसीं दूसरा लेना है, ये नहीं लेना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो दूसरे वाला इहदा करंट कैलकुलेट करना है I1, रेजिस्टेंस दूसरा लो R2 डिवाइडेड बाय सम, उस तरह ही R1 प्लस R2 इनटू इनपुट करंट जो आ रहा है I1 कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। I2 देखो खुद लिख के देखो, I2 का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, I2 कैलकुलेट करना है इधरला, रेजिस्टेंस अपन दूसरा लवांगे R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ R1 प्लस R2 इनटू इनपुट करंट जो आ रहे हैं। सो बाय दिस formulas you can calculate I1 and I2. Guys, let us now discuss some numerical problems. Look at this problem here. तो इत्थे एक रजिस्टर है R1 5 ओम दा, जो तीन रजिस्टर्स होर लगे ने 15 15 15 ओम दे। आपां पता की करना है, we have to find out equivalent resistance between A and B. तो सब तो पहला इस तरह के न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना ਹੁੰਦਾ है सीरीज कॉम्बिनेशंस ਤੇ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। जेकर उत्थे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई भी ना होवे फिर प्रॉब्लम थोड़ी कंप्लीकेटेड हो जाती है, फिर आपां नूं किरचॉफ लॉज यूज करने पैंदे ने, आपां बाद दे विच सिखांगे। बट जेकर आपां नूं सीरीज ते पैरेलल कॉम्बिनेशन हैगे ने, ਉਹ मिलदे ने, तां प्रॉब्लम थोड़ा ईजी सॉल्व हो जाता है। तो इस दे विच बड़े ध्यान नाल देखो, पहलां तुसीं सोच के देखो, ध्यान नाल डायग्राम नूं देखो, तुहानूं कोई भी लगदा रजिस्टर्स जे तुसीं आइडेंटिफाई कर सकदे हो सीरीज दे विच लग रहे होण कोई, जां पैरेलल च पता लग रहा होवे। देखो मैं दी नेमिंग कर ला, लेट अस सपोज C D E F। देखो जो C ते D पॉइंट ने, इन्हां दे विच कोई भी रजिस्टर नहीं लग्या, सिंपल वायर है। इहदा मतलब जो पोटेंशियल C ते होएगा वही पोटेंशियल D ते होएगा, विच कोई रजिस्टेंस नहीं आई तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो हो नहीं सकता। तो इन्हां दोवां ते पोटेंशियल सेम होएगा, इहदा मतलब दोवें इकट्ठे ही ने। क्लीयर। हुण देखो तुसीं R2 ते R3 नूं देखो ध्यान नाल, ए वाला एंड कनेक्टेड है, तो जे ए वाले एंड्स भी देखिए आप आपस दे विच की ने कनेक्टेड ने, तो आप इक्विवेलेंट सर्किट जेकर ड्रॉ करांगे, मैं कह सकदा कि जेड़ा डी पॉइंट इत्थे है, ये दोवें वायर्स ने, इन्हां नूं सीधा मैं इत्थे ही अटैच कर ला। जेकर सपोज करो सीधा सोच के देखो, जो ये है ये वायर एक तरीके नाल इत्थे ही अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह जो ए वाली वायर जा रही है R4 देखो ध्यान नाल, ठीक है जी, इधरला ये कनेक्टेड C ते कनेक्टेड है। ओके क्लियर। ये आपस में तीने रजिस्टर जो ने इस साइड तो आपस दे विच कनेक्टेड ने, इस साइड तो देखो ए वाला वायर कनेक्ट हो गया, ए वाला वायर आके भी इनू इस तरह जरूरी लेके आना, मैं सीधा ले जाना, वायर ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपस दे विच सीधा ही किने कनेक्टेड ने। तो क्लियर हो रहा है दीज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। यही तुसी आइडेंटिफाई करना है, ये देखने तो नजर आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पएगी। तो तीनों रजिस्टर्स पैरेलल दे विच ने, तो जेकर मैं इन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा तो 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4।
तो 1/15 1/15 अपन पता है तीनों रजिस्टर सेम ने, सीधा 15/3 कर देंगे अपन, तो अपने को आरपी कितना आ जाएगा 15/3 दैट इज 5 ओम। इन्नी गल क्लीयर होगी जी। तो ये तिना की इक्विवेलेंट रजिस्टेंस अपने को की आ गई 5 ओम आ गई। तो सर्किट में थोड़ा चेंज कर रहा मैं हुण, मेरे को सारा रजिस्टेंस इत्थे इक्विवेलेंट मेरे को आ चुके हैं, कितना आ गया है, दिस इज 5 ओम। हुण ध्यान नाल देखो आरपी अपना आ गया, ये दोवें रजिस्टर्स देखो ध्यान नाल, एक एंड कनेक्टेड है, ठीक है जी, दूसरा एंड आपस च कनेक्टेड नहीं हैगा, ए तो बी ते जान लई कोई पाथ है, कोई होर पाथ नहीं हैगा, ये दोवें काच ने सीरीज दे विच ने। तो जिहड़ा अपने को नेट रजिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी 5 + 5 दैट इज 10 ओम। सो आंसर इज 10 ओम। क्लियर होया? ओके। हुण तुहाडे सामने एक दूसरी प्रॉब्लम है बनी हुई डायग्राम, इसनूं ध्यान नाल देखो। आइडेंटिफाई any series combination or parallel combination if you can identify here। एक की पॉइंट नोट रखो, जेकर दो पॉइंट्स दे विच कोई भी रजिस्टर नहीं लग्या तो उन्हां दा पोटेंशियल सेम होएगा। जिवें देखो ए ते सी दे विच कोई भी रजिस्टर नहीं लग्या, यह सिंपल वायर है, तो इन्हां दोवें पॉइंट्स दा पोटेंशियल सेम होएगा, मतलब इन्हां नूं इक्को ही पॉइंट ते शो कर सकदा। क्लीयर है भी? ए ते डी भी देखो, इन्हां विच कोई भी रजिस्टर नहीं लग्या, कोई कुछ नहीं है इन्हां दे विचाले कोई, तो यदा मतलब इत्थे जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होएगा, इन्हां दा पोटेंशियल सेम होएगा। तो इस डी पॉइंट नूं मैं इत्थे भी शो कर सकदा। तुसीं करना कि जस्ट देखो ध्यान नाल, आ जिहड़ी सारी वायर है इहनूं भुल जाओ, तुसीं देखो जस्ट सोचो भी यही जिहड़ा है इत्थे कनेक्टेड है। क्लीयर होई गल? इहनूं मैं हल्का जिहा किवें बनावां, आह जे हैगा सी इत्थे कनेक्टेड ने दोवें सिद्धे। कुछ क्लीयर होया? इस तरह ही सी पॉइंट है जिहड़ा, इहनूं देखो इत्थे ही है, ए पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट तिन्ने इक्को जगह ते आ गए। जिहड़ा सी पॉइंट है ना, इहनूं भी मैं कित्थे ले आया, सीधा मेरा इत्थे ही है। क्लीयर? ओके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कोशिश कर रहा ड्रॉ करने की, तो दोबारा फिर मैं साइड ते ड्रॉ करके दिखाना। तो अपना ए पॉइंट सी, ए पॉइंट तो एक रेजिस्टेंस अपने को हैगी है 6 ओम, ठीक है जी। ओके। आह भी अपना जिहड़ा हैगा देखो सी पॉइंट आपां इत्थे ले आए, इहनूं इत्थे लेके आए आपां। ओके। तो ये वाला जिहड़ा एंड है इत्थे कनेक्टेड है, ए पॉइंट ए ते सी पॉइंट सेम हो गए, इकट्ठे हो गए, तो इत्थे कनेक्टेड है। तो आ अपना 6 ओम कनेक्टेड है, ए वाला जिहड़ा हैगा ये भी 6 ओम ए पॉइंट ते कनेक्टेड है, तो ए वाला 6 ओम भी जो कनेक्टेड है इत्थे कनेक्टेड है। क्लियर हो गया जी? तो ये 6 ओम जिहड़ा हैगा इहदा दूसरा एंड कित्थे गया, ओ ते, आ पॉइंट ओ है। ए वाले 6 ओम दा भी दूसरा एंड कित्थे गया, ओ ते, ते ए वाले रजिस्टर दा भी दूसरा एंड कित्थे गया, ओ ते। क्लियर होया कुछ? अच्छा, इत्थों ओ पॉइंट ते होर रजिस्टर जा रहा है 6 ओम, नेक्स्ट पॉइंट की है बी। तो यह अपने को इक्विवेलेंट रजिस्टर है, जिहड़ा इक्विवेलेंट सर्किट निकल के आ रहा है। आ 6 6 6 ये तिन्ने काच हो गए, पैरेलल च हो गए। बाद ए वाला इन्हां दे की हो जाएगा, सीरीज दे विच हो जाएगा। जेकर देखिए 6 6 6 कितना रह जाएगा जी, 6/3। क्लियर हो गया? इहदा आरपी कॉम्बिनेशन 6/3 दैट इज 2। तो आ मेरे को की आ गया, ए ते ओ दे विच कितना आ गया, 2 आ गया जस्ट। ते बाद दे विच की है मेरे को 6 होर एक। क्लीयर? हुण ये दोनों काच नजर आ रहे ने सीरीज दे विच, तो टोटल जिहड़ी रेजिस्टेंस है 2 + 6 कितनी आ गई, 8 ओम आ गई। क्लियर हुई गल? तो इक्विवेलेंट रजिस्टर सर्किट है ना, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखो। आज जो तुहानूं 3 रजिस्टर्स नजर आ रहे सी ना इस तरीके नाल, ये तुहानूं नजर आना चाहिए। तुसीं इहदे विचों आइडेंटिफाई करना है भी जिहड़े 3 रजिस्टर्स ने ये पैरेलल दे विच ने। इन्हां देखो ए वाले एंड्स आपस च कनेक्टेड ने, इधरों ए वाले एंड्स भी जिहड़े हैगे ने, तिन्ने एंड्स देखो रजिस्टर दे आपस दे विच कनेक्टेड ने। तो आपां इस तरह बनाता, ये तिन्ने रजिस्टर्स नूं ए वाले एंड्स कनेक्टेड ओ पॉइंट ते, ए वाले एंड्स कनेक्टेड ए पॉइंट ते। ए वाला अलग सी अलग बनाता। इफ यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, then you can easily solve these numericals, but you have to do practice as much as possible. Okay, thank you.